شوگر مافیا حکومت پر بھاری پڑ گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی 100 کلو گرام بوری 600 روپے اضافے سے 10,000 روپے کی ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 110 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے دعووں کے باوجود چینی کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اکبری منڈی میں چینی کی 100 کلو گرام بوری 600 روپے اضافے کے بعد 10,000 روپے کی ہو گئی۔ چینی کے ہول سیل نرخ 100 روپے ہوئے تو اوپن مارکیٹ میں قیمت 110 روپے کلو تک جا پہنچی۔ شہریوں نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبدیلی سرکار زبانی جمع خرچ کی بجائے بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرے۔ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں جویلری سٹور پر بھی اشیاء نایاب ہو گئی ہیں۔ شہر کے جویلری سٹور میں سستا آٹا، چینی اور گھی ایک بار پھر سے غائب ہے۔ خریداری کے لیے آنے والوں کی مایوس واپسی۔ آٹا، گھی اور چینی کھپت کے مقابلے کم سپلائی ہونے سے قلت کا شکار ہوئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ کئی دن اشیاء نہیں ملتی، آٹا، چینی، گھی بازار سے مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے دہائی دی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی NTDC کا ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھنا شروع ہو گیا۔ راوی اور شیخوپورہ سرکٹ اوور لوڈ، لیسکو کے متعدد گریڈ اسٹیشن پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم کا ٹرانسمیشن سسٹم اوور لوڈ ہونے لگا ہے۔ اوور لوڈنگ کی وجہ سے شمالی لاہور اور اندرون لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے لیسکو کے متعدد گریڈ اسٹیشن پر ٹرپنگ ہونے لگی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ NTDC کے شیخوپورہ اور راوی گریڈ اسٹیشن اوور لوڈ ہو گئے ہیں۔ راوی سرکٹ سے نکلنے والی لیسکو کے گریڈ اسٹیشن پر بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے لیسکو کے فورٹ، موچی گیٹ، بادامی باغ، چامیرا اور بھارٹی گریڈ اسٹیشن پر بھی ٹرپنگ ہونے لگی۔ ٹرپنگ کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب لیسکو کی سپلائی اور ڈیمانڈ برابر ہو گئی ہے۔ طلب 4600 جبکہ فراہمی بھی 4600 میگا واٹ۔ میٹرک امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری۔ پہلا پرچہ 29 جولائی کو ہوگا۔ لاہور بورڈ پہلے روز 5 مضامین کے امتحان لے گا۔ 2 شفٹوں میں ہونے والے امتحانات کی تفصیلات بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی جاری۔ طلباء کی رول نمبر سلپس آئندہ ہفتے جاری ہوں گی۔ میٹرک امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی۔ ویکسینیشن کے عمل پر اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ 1 ماہ کی محنت کے بعد موڈرنا ویکسین لگوانے والے شہری کو چائنیز ویکسین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا۔ جو پہلے چائنیز ویکسین لگوا چکے ہیں انہیں اب فائزر یا موڈرنا ویکسین لگانے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ ایکسپو سینٹر پر کرونا ویکسینیشن لگوانے کے خواہش مند اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ شہری نے اللہ کر کے موڈرنا ویکسین لگوائی اور جب سرٹیفکیٹ لینے گیا تو اسے چائنیز ویکسین سائنوویک کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا۔ 1 مہینہ سے ذلیل و دربدار کھڑا ہو کے ذلیل ہو رہا تھا ویکسین کے لیے۔ کبھی سیالکوٹ جاتا تھا، کبھی ظفرآباد میں آتا تھا۔ یہ سعودی عرب جانے کے لیے ویکسین نہیں ملتی تھی۔ ابھی میں لاہور آ کے لگوائی ہے، کل لگوائی تھی 6 تاریخ کو، 6 جولائی کو۔ آج 7 تاریخ ہے۔ میں اس لیے ذلیل ہو رہا ہوں کہ میں نے مڈرونا لگوایا اور ان لوگوں نے رزلٹ پہ میرے پہ لکھ دیا ہے کہ چائنا کے لگوائی ہے۔ بیرون ممالک جانے کے خواہش مند ایسے افراد بھی ہیں جو پہلے چائنیز ویکسین لگوا چکے ہیں اور اب فائزر یا موڈرنا ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، لیکن انتظامیہ کے پاس ان کے مسئلے کا حل نہیں۔ مجھے کویت جانا ہے اور کویت کے لیے مجھے ویکسین پہلے چائنا کی لگ چکی ہے اور ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں دوسری ویکسین نہیں لگا رہے، نہ AstraZeneca لگا رہے ہیں، نہ کوئی دوسری لگا رہے ہیں جس سے ہم کویت جا سکیں۔ دوسری طرف ایسی مثال بھی سامنے آئی ہے کہ شہری کو ویکسین لگائے بغیر ہی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ AstraZeneca ویکسین تھی، میں ادھر آیا، فارم میں نے نکلوایا۔ اچھا جب میں لگوانے گیا تو ویکسین ختم ہو گئی، پھر وہ میرے ریکارڈ میں آ گئی۔ میں ان سے ریکویسٹ کر کے تھک گیا ہوں کہ بھائی وہ میرے ریکارڈ سے ہٹا دو تاکہ میں کوئی دوسری ویکسین لگوا لوں۔ اب میرے 5 چکر لگا چکا ہوں، میں 5 سے 7 چکر لگا چکا ہوں۔ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کی کمپلین بھیج دی آگے اور وہ ریزالو ہو جائے گی۔ جب آتا ہوں سر ابھی ریزالو نہیں ہوئی، ابھی ریزالو نہیں۔ کورونا ویکسینیشن کے عمل میں ابھی بھی 100% شفافیت نہیں لائی جا سکی۔ انتظامیہ کو ترجیحی بنیادوں پر اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین عدیل چودھری کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ لاہور ماسک پہنتا ہے مہم کی بڑی کامیابی۔ بین الاقوامی ڈونر کمشنر لاہور کو 3 کروڑ ماسک عطیہ کرے گا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس کی لاہور ماسک پہنتا ہے مہم کی کامیابی اور شہریوں کی ضرورت کے پیش نظر بین الاقوامی ڈونرز کمشنر لاہور کو 3 کروڑ ماسک عطیہ کرے گا۔ ماسک شہریوں میں مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس کے مطابق کورونا کی چوتھی لہر سے بچنا ہے تو ہمیں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ شہری ماسک کی عادت کو اپنائے رکھیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو ماسک خریدنے کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شہریوں کی صحت ہماری
हमारी अवलीन तरजीह है। दूसरी जानिब शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला, जानवरों के लिए जगह कम पड़ गई। वेलेंशिया टाउन मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के बैल शेरू के चर्चे हैं। भारी भरकम शेरू की कीमत 6 लाख रुपए रखी गई है। शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में जानवरों के लिए जगह कम पड़ गई है। दूर दराज से जानवर ट्रकों में लाए जा रहे हैं। इनमें बकरे, बछड़े और ऊंट, हर किस्म के जानवर शामिल हैं। दूसरी तरफ वेलेंशिया टाउन मंडी में साहिवाल नस्ल का शेरू बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज है। बैल के मालिक का कहना है कि इसने बैल को देसी घी, बादाम और चारा खिलाकर पाला है। 6 लाख से कम में फरोख्त नहीं करेगा। की कीमत जी 6 लाख रुपए है। इसको जी गंदम और मकई और करा खिलाते हैं इसको, ठीक है, और इसके अलावा देसी घी भी इसको पिलाते रहे हैं साथ में। मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। ज्यादातर खरीदार फिलहाल भाव ताव पर ही इत्तफाक कर रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईद से कबल बड़ी मौजें। ग्रेड 1 से 19 के अफसरान और मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह 60% इजाफी मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब भर के 7 लाख से जायद ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन और अफसरान को 25% स्पेशल अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल अलाउंस 10 महकमों के अफसरान और मुलाजमीन को नहीं मिलेगा। पुलिस, अदलिया, डॉक्टर, इंजीनियर समेत सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन शामिल हैं। बड़ी ईद से कबल 7 लाख से जायद मुलाजमीन और अफसरान 60% तनख्वाह इजाफी वसूल करेंगे, क्योंकि जुलाई की तनख्वाह के साथ 25% स्पेशल अलाउंस और जून के महीने का 25% स्पेशल अलाउंस अलग से मिलेगा। दूसरी जानिब बजट में मंजूर की गई 10% इजाफी तनख्वाह भी इसमें शामिल होगी। लाहौर के अर्बन डेवलपमेंट बजट में 10 अरब रुपए का इजाफा। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए खती रकम खर्च की जाएगी। पंजाब हुकूमत नए माली साल में अब लाहौर पर तवज्जो देगी। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। महकमे हाउसिंग हुकाम के मुताबिक नए मंसूबों में शहर में सड़कों की तोसी, नए अंडरपास शामिल होंगे, जबकि सिग्नल फ्री रोड, नए यूटर्न और सबवेज भी बनाई जाएंगी। महकमे हाउसिंग हुकाम के मुताबिक मंसूबे का इब्तदाई तखमीना 10 अरब रुपए लगाया गया है और अर्बन डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर मंसूबा बंदी की जा रही है। बुज़दार सरकार तालीम दोस्त इक़दामात के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए डेडलाइंस मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी बारे खुसूसी अहकामात और फंड्स फ्राहम कर दिए हैं। वज़ीर आला के अहकामात पर माली साल 2021-22 में शामिल तमाम नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स को डेडलाइन भी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों को स्कूल एजुकेशन की नए माली साल में शामिल स्कीमों को 21 जुलाई तक मंजूरी देने की हदायत की गई है, जबकि तरक्याती स्कीमों के वर्क अवार्ड 30 सितंबर तक जारी करने के अहकामात दिए गए हैं। सगियां रोड, बाबू साबू और बरकी रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। LDA ने नए माली साल में शामिल तीनों सड़कों की तामीर के मंसूबों का PC1 तैयार कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तीनों नए मंसूबों पर मजमूई तौर पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी, जिसका बाकायदा PC1 तैयार कर लिया गया है, जबकि नेस्पाक की जानिब से डिजाइन भी तैयार किया गया है। LDA के मज़कूरा मंसूबों की मंजूरी महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से ली जाएगी। सगियां रोड की असर नौ तामीर और बहाली पर 75 करोड़ 42 लाख की लागत आएगी। सगियां इंटरचेंज से बाबू साबू ता शरकपुर रोड तक सड़क मुकम्मल बहाल की जाएगी। LSC से BRB तक बरकी रोड की बहाली और 2 रोया मंसूबे पर 40 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। बाबू साबू इंटरचेंज की बहाली और अतराफ की सड़कों की बहाली पर 24 करोड़ 47 लाख लागत आएगी। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन ने DG LDA की हिदायत पर PC1 तैयार करवाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 2 एंजियोग्राफी मशीनें खराब, इलाज मुआवजा रुक गया, फोन एक्सचेंज भी जवाब दी गई। दिल वाले हस्पताल आया वहाँ एंजियोग्राफी करानी है तो बार बार टाइम दे जा रहे हैं, कि मशीनें खराब ने, बाजारों कराओ, असं मजदूर बंदे हैं और 6 माह हो गए ये मशीनें ख़राब हैं, ये मशीनें नहीं ठीक कर रहे और चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं, किराए रिक्शे के दे के थक गए हैं। मशीनें ख़राब हैं, कोई डॉक्टर बात नहीं सुन रहा, उधर से वापस भेज देते हैं। कह रहे हैं मशीनें ख़राब हैं तो हम कहाँ से कराएं, जियोग्राफी इतनी महंगी हो रही है, हर दफ़ा चक्कर लगवाते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं, मशीनें ख़राब हैं, मशीनें ख़राब हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई रिलीफ तो दे नहीं रही हमें। अमरीकी लेबल लगाकर चीनी अल्ट्रासाउंड मशीन 3 गुना ज़ायद कीमत पर ख़रीदने का स्कैंडल। महकमा प्राइमरी हेल्थ जालसाजी का इल्म होने के बावजूद 300 मशीनें ख़रीदने के लिए कोशां है।
अमरीकी लेबल लगाकर चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीन सरकारी इदारों को सप्लाई करने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। मेडिसोनो नामी अमरीकी कंपनी के लेबल के साथ चीनी साख्ता 18 अल्ट्रासाउंड मशीनें 7.5 लाख रुपए से ज्यादा रेट पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर को सप्लाई की गई थी। जिला इंतजामिया ने छानबीन की तो जालसाजी पकड़ी गई। इंतजामिया ने मेडिसोनो का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया और मजीद कार्रवाई के लिए मामला FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक मार्केट में चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीन की कीमत 3 लाख रुपए से भी कम है, लेकिन महकमे प्राइमरी हेल्थ यही मशीन 8,82,000 रुपए में खरीद रहा है, जिससे खजाने को 17.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली नुकसान पहुंचे। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पर मेडिकल के तलबा और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान ठन गई। तलबा ने शेख ज़ैद अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। हम इसे बेमकसद इम्तहान समझते हैं। उसकी वजह यह है कि हम 5 साल अपने प्रोफेशनल इम्तहानात पास करने के बाद, डिग्री लेने के बाद अपनी काबिलियत मनवा चुके हैं। अगर आप ये कहेंगे कि इस इम्तहान का मकसद आपकी काबिलियत जानना है, तो ये आपकी नीयत, आपकी वो मकसद ही गलत है। मैं बताता हूँ आपका मकसद क्या है। आपका मकसद ये है कि आपके पास डॉक्टरों को देने के लिए नौकरियाँ नहीं है। आपने पिछले 20 साल में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने अपना मेडिकल का निज़ाम ठीक नहीं किया। उस सब का मलबा आप इंतजामिया पर डालने के बजाय हम तलबा पर डाल रहे हैं। आपका जोर हम पर चल। माजी की हुकूमत का शाहकार मेट्रो बस को नज़र लग गई। मुस्लिम टाउन पुल पर मेट्रो बस का एक्सल टूट गया। ड्राइवर के हंगामी ब्रेक, मुसाफिर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। गुज़श्ता 10 दिनों में ये 5वीं बस के साथ हादसा पेश आया है। माजी की हुकूमत का शाहकार मेट्रो बस को नज़र लग गई। मुस्लिम टाउन पुल पर मेट्रो बस का एक्सल टूट गया। ड्राइवर ने हंगामी ब्रेक लगाई। मुसाफिर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। दरख्वास्त गुजार ने बैरून मुल्क की आमदन गोशवारों में डिक्लेयर की। जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 18 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज्यादा असासों के इल्जामात तफ्तीश तलब हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आज तक रेफरेंस दायर नहीं किया गया। एमको कंपनी का नुमाइंदा पाकिस्तान आना चाहता था, मगर तफ्तीशी अफसर ने दुबई की कंपनी के नुमाइंदों को शामिल तफ्तीश नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने अपनी बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। फैसले में मजीद कहा गया है कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तानी नजाद आर्टिस्ट गुलकार असद कुरैशी की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने असद कुरैशी के गीत दिल है, तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान को खूब सराहा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा कि असद कुरैशी का ये काम नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है। हमजा शहबाज से बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर लोना थॉमस की मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज से मॉडल टाउन में पॉलिटिकल काउंसलर बरतानवी हाई कमीशन लोना थॉमस ने मुलाकात की। अभी आपको बताएं, पंजाब क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर मियां परवेज अख्तर मरहूम की खिदमात के पेश नज़र अंडर 16 क्रिकेट अकेडमी कायम कर दी गई। मियां परवेज अख्तर मेमोरियल अंडर 16 क्रिकेट अकेडमी इकबाल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। कर्नल वहीद और आसिफ सुहेल अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर साबिक ICC एम्पायर और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर मियां असलम समेत भी मौजूद थे। अंडर 16 क्रिकेटर्स में मुंतजमीन की जानिब से नेट प्रैक्टिस के लिए किट्स तकसीम की गई। रोज़ाना की बुनियाद पर मियां परवेज अख्तर मेमोरियल क्रिकेट अकेडमी में नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अकेडमी के ऑर्गेनाइज़र मियां असलम का कहना है कि सोमवार को अंडर 16 क्रिकेटर्स का पहला प्रैक्टिस मैच LDA कॉम्प्लेक्स शाहदरा में होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।